ایک منٹ رکیے، ایک منٹ صرف پیرانوما شاٹ ایک منٹ۔ اس کے اندر ایک ٹینڈنسی بنائی ہے کہ وہ ایک ریسورس کو جو ہے ڈیولپ کرے، اور مرد کو بھی ایک ریسورسز کو ڈیولپ کرتا ہے، لیکن مرد کے اندر جو ٹینڈنسی ہے وہ مٹیریل ریسورس کو بڑھانے کی ہوتی ہے، اور خواتین کے اندر جو ٹینڈنسی رہتی ہے۔ اس لیے اگر پوری دنیا میں انسانوں کو ہیومن ریسورس کو ڈیولپ کرنا ہے تو ادبی دنیا میں زیادہ رہا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے افسانوں کے ساتھ ساتھ شاعری پر بہت حاصل ہے۔ محترمہ بی ایڈ کامیاب ہونے کے بعد ایم ایس سی میں زیر تعلیم ہے۔ محترمہ کے بہت سارے افسانے منظر عام پر آ چکے ہیں، اور آج اسی افسانوں کے مجموعہ اپنے دائرے کا فرعون اس کا اجرا ہے۔ صبا تحسین کے افسانے مجموعوں میں کل 17 افسانے شامل ہیں، جن میں آگ کا دریا، اولڈ ایج ہوم، لاشوں پر ایوارڈ، چیخیں، نئی صبح، مجھے جینے دو، بدلتے رشتے، رام راجیہ وغیرہ شامل ہیں۔ ہر افسانے میں الگ الگ موضوع کو اجاگر کیا گیا ہے۔ صبا تحسین کے افسانوں سے نکلنے والی احساس کی چیخیں پڑھنے والوں کی روح کی گہرائیوں تک اتر جاتی ہیں، اور خاص بات تو ہے کہیں کہیں محترمہ کے خط سے زندگی کے فلسفہ چھلکتا ہے۔ سماج میں موجود برائیوں کو بہت بہترین انداز میں بیان کیا گیا ہے، جس کے لیے صبا تحسین قابل مبارکباد ہے۔ میں محترمہ صبا تحسین کی پہلی کتاب کے لیے ڈھیروں مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ ان کو مزید کامیابی عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کی شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے عقل و شعور سے سرفراز کیا، غور و فکر و مشاہدے کی صلاحیت بخشی، اور اسی مشاہدے میں میرے ناتواں ہاتھوں میں قلم سنبھالا۔ میرا یقین ہے کہ قدرت کے کارخانے میں کوئی چیز بے مسرت اور بے مقصد نہیں ہوتی۔ موجودہ فرعونیت کے دور میں اگر خالق کائنات نے میرے ہاتھوں میں قلم تھمائی ہے تو یقیناً یہ عمل بھی بامانی ہے، لہٰذا میں نے بھی قلم کو عصا بنانے کی کوشش کی ہے۔ اپنے دائرے کا فرعون میرے تخلیقی سفر کا پہلا پڑاؤ ہے۔ مجھے نہیں پتا مشاہدے اور تکلیفات کا یہ تصادف دریائے نیل بن سکا ہے کہ نہیں، البتہ یہ اطمینان ضرور ہے کہ وقت کے فرعون کو برخاست کرنے کی میں نے کوشش کی ہے، بالکل اسی ننھی سی چڑیا کی طرح جو آتش نمرود کو بجھانے کے لیے اپنی چھوٹی سی چونچ میں پانی کا قطرہ لے کر آنکھ پر چھڑکتی رہی۔ حالات اور تجربات سے میں نے جو کچھ بھی عکس کیا، اسے اپنے احساسات کو افسانوں کے پیراہن میں ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ مجموعہ آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ قارئین بالخصوص ادبا طے کریں گے کہ میں اپنی کوششوں میں کس حد تک کامیاب ہوئی ہوں۔ ادبی دنیا میں یہ میرا پہلا قدم ہے۔ اپنے بزرگوں سے یہی امید کرتی ہوں کہ وہ مشرف مکتب کی ہر قدم پر رہنمائی کریں گے، اور اس کے بعد میں اپنے والدین کی شکر گزار ہوں کہ جن کی مخلصانہ تربیت اور حوصلہ افزائی نے مجھے اس قابل بنایا۔ میری ہمیشہ یہی کوشش ہوگی کہ میں قلم کی لاج رکھوں، حق و انصاف کی علمبردار بنوں، اور اپنا بیش قیمتی وقت دے کر آپ تمام نے اس تقریب میں شرکت کی، اس کے لیے میں تمام مہمانان کی اور تمام سامعین کی بہت شکر گزار ہوں۔ ساتھ ہی اگر یہ بددیانت داری ہوگی کہ اگر میں فردوس فاطمہ صاحبہ کی حوصلہ افزائی اور تعاون کا اعتراف نہ کروں۔ انجمن اہل قلم کی میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے سب سے پہلے نئے قلمکاروں کو اسٹیج فراہم کیا اور مجھے بھی یہاں سے بڑھنے کا موقع ملا۔ اس تعلق سے میں فردوس فاطمہ صاحبہ کی بھی ممنون و مشکور ہوں، اور آخر میں آپ سبھی کی شکر گزار ہوں، اور آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ میں مستقبل میں بھی زبان و ادب کی خدمت کرتی ہوں۔ بہت شکریہ۔ نور الحسن صاحب، افسر خان صاحب، میرے بڑے بھائی سیف الدین صاحب، ہیڈ ڈپارٹمنٹ آف اردو کیرتی میڈم، اسلم مرزا صاحب، ابو بکر رحمت صاحب، عظیم رانی صاحب، اور فردوس میڈم جو ماشاءاللہ بہت
जिनका दिल जो है ख़वातीन की तरक्की के लिए धड़कता है और जो बहुत ज़ोर शोर से जो है शहर में काम कर रही है, सलीम साहब, हेड डिपार्टमेंट ऑफ पीजी उर्दू, डॉक्टर रफीक ज़करिया कॉलेज, अख्तर साहब, नदीम साहब, खादर सर, के.एम. चिश्ती साहब और फैकल्टी मेंबर्स शीमा मैडम, रज़ाना मैडम और उर्दू डिपार्टमेंट की टीचर्स और ख़ास तौर पर सबा तहसील जो इसकी मुसन्निफ़ा है और तमाम बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। विमेन एम्पावरमेंट जिस पर खालिद साहब ने एक ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस ली है, तो मैं समझता हूँ हर एक ऐसी कोशिश ये वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ एक कदम होता है, चाहे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके लड़कियों को और बच्चियों को और ख़वातीन को इस पर उभारा जाए कि वो अपने जहन से में जो दौड़ता हुआ खून है उसको अपने फाउंटेन पेन के जरिए सबा तहसीन शेख निसार अहमद, इनकी आज अफसानवी मजमूए की पहली किताब अपने दायरे का फरोग मंजर आम पर आई है। इसे मंजर आम पर लाने के लिए अहले कलम और नौखंडा कॉलेज ने पेश कदम बताया है। इस किताब का टाइटल कवर देखने से कुछ तजस्सुस महसूस हुआ कि यकीनन फिरौन नाम का जो बादशाह था, तो उसका एक तस्वुर मिला मुझे। आज पहली बार देखा इसका टाइटल कवर। कहानियां तो हमने पढ़ी है इससे पहले भी। सबा तहसीन के लिए हमारी नेक ख्वाहिशात है कि इस मराठवाड़ा जैसे जरखेज इलाके से नए अफसाना निगार खवातीन जब सामने आएंगी तो फिर एक नई खवातीन की तारीख बनेगी, और हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई ये अफसानवी मजमुआ आज अवाम के सामने दिया है उन्होंने। इसी तरह से इनका कलम और तेज चलता रहे। अहले कलम वालों के लिए भी हमारी तरफ से नेक ख्वाहिशात कि वो नए लिखने वाले कलमकारों का हमेशा से ही सरपरस्त बनकर उनके तमाम तर सलाहियतों को उभारने में अहम काम अंजाम देते हैं, और इसी तरह वो अपने काम को जारी व सारी रखे। फिर एक बार सबा तहसीन को हम शोबे उर्दू डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी की जानिब से मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो जल्द ही और नई तख्लीक अवाम के सामने रहे। मराठी अदब भी होता है, हिंदी कल्चर का अदब भी होता है, उर्दू अदब भी होता है, और बेशुमार हिंदुस्तान में जो उर्दू का एक मतलब जिंदगी मिली है, रखा हुई एक माहौल परवरिश पाया है, और आप एक मतलब क्या कहेंगे गैर मुस्लिम घराने से आते हैं, तो कैसा महसूस होता है एक उर्दू अदब से जुड़ना, और एक कैसा महसूस होता है हालात, मतलब एक पस मंजर क्या पेश करेंगे आप? सबसे पहली बात गैर वो कह के थोड़ा सा बुरा लगता है, क्योंकि आज तक के अलग अलग नाम मिलते हैं। हम लोग जब भी कहीं जाते हैं, उर्दू अदब से मेरा ताल्लुक है, उर्दू का ही खाती हूँ, तो किसी ने प्रीति कृति अलग अलग नाम दिए। पहली बार जो नाम मिला नांदेड़ में मिला उर्दू की बेटी, तो बहुत अच्छा लगा। इससे ज्यादा अजीज कोई बात हो ही नहीं सकती। वापस लेता हूँ, मेरा मतलब जो है तो वो नहीं था, बल्कि ये भावना था कि जो हमारे मुस्लिम महिलाएं जो है वो आपसे प्रेरणा ले, एक सबक ले, तो अब उनकी तरह एक बेटी बहन जब आ सकती हम क्यों नहीं आ सकते? बिल्कुल। तो हमें कल परसों ही नाम मिला है उर्दू की बेटी, और लोगों को हम पर फख्र है, तो फिर हम उसी तरह से आते हैं जैसी अपनी बेटियां आती है। तो बिल्कुल ऐसे दिल में थोड़ा भी शक व शुबा नहीं होता हमें कभी, और यकीनन अगर हमारी तरफ देख करके ये और अच्छा लिखेंगी तो हमें बहुत ज्यादा खुशी होगी। तो ये लिखती रहे, इनके अफसानों को निखारने के लिए औरंगाबाद की जो भी तरबियत याफ्ता है वो उनकी तरबियत करते रहेंगे। उन्हें हमसे भी जब कभी भी थोड़ी भी सहूलत हो तो वो आ सकती है और बात कर सकती है। मुस्लिम बेटियां लड़कियां जो तालीम याफ्ता है, जो तालीम की तरफ गामजान है सफर उनका, उनको पैगाम नहीं है आपको आदर के ताल्लुक से? बेटियों की रहनुमाई यही तो बेड़ा उठाया है हमने यूनिवर्सिटी शोबे में रह करके। जो भी एमफिल पीएचडी या तख्लीकात लिखने वाले अदीब मुसन्निफ शायर शोरा जो भी हमसे मिलते हैं, तो उनकी सिर्फ और सिर्फ रहनुमाई करना यही काम है हमारा। हमें बहुत खुशी होती है अपने काम से, और नए लिखने वालों को देख करके ऐसा लगता है कि फिर से जैसे जमीन पर
बारिश के बाद में लहलाहट महसूस होती है, तो ये लिखने वाले नए कलमकारों को हम जब भी देखते हैं उसी तरह झूमते हैं जैसी धरती झूमती है। बहुत खुशी होती है हमें, एक नई महक, एक नई खुशबू, एक नए फूल जिस तरह से जमीन पर देखते हैं, ये किताबों को देखकर उतनी ही खुशी होती है। यूनिवर्सिटी वालों को बहुत बहुत मेरी लफ्ज़ से आपकी आज़ारी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अपने आप क्या कहेंगे बाजी, आज आपकी किताब का इजरा अमल में आया है, बतौर एक महिला ख़वातीन और एक पर्दे के साथ इस उर्दू अदब में तरक्की करना, इसकी मंजिलों को छूना, अपने घर की घर गृहस्थी को देखते हुए, सारी महदूद पाबंदियाँ भी होती हैं, बहुत से ज़माने के दबाव भी होते हैं, कैसा महसूस करते हैं यार इस मामले में फिर एक अदब की तरफ जाना, कैसा महसूस करते हैं? अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी किताब का पहला पड़ाव यानी कि अपने दायरे का फ़िरौन, ये अफसानवी मजमुआ सामने आया है। अपने दायरे का फ़िरौन, इसका जो उन्वान रखा गया है वो खुसूसी तौर पर समाज में फैली हुई बुराइयों को मद्देनज़र रखते हुए कि हर दायरे में एक फ़िरौन है, और अगर फ़िरौन है तो फिर वहाँ मूसा भी होगा और असा भी होगा। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये कहानियों को बुना गया है और ये सब इसी की अक्कासी करती है। बाजी भी बताइए, जैसे आपने कहा फ़िरौन और मूसा का जिक्र किया है, तो क्या जो आजकल के वाक़यात हो रहे ख़वातीन के साथ, तलाक़ें होती हैं, खुलाएँ होती हैं, कोई बातें मंजर आम पे आती है, कभी आपने इससे मुतासिर होकर भी इसको कलम को चलाया है? इससे मुतासिर हुए कभी आप? जी हाँ, हमारे अफसानवी मजमूए के अंदर रियाकारी नाम से एक अफसाना मौजूद है जो इस चीज़ की अक्कासी करता है कि खुसूसन लड़कियों और औरतों के साथ जो मसाइल दरपेश होते हैं, यानी कि अपने दायरे के फ़िरौन में मद्देनज़र रखते हुए इसको भी बयान किया गया है रियाकारी के अंदर। माजी आप ये बोलिए कि आप महिला हैं, अब महिलाओं को मतलब लड़कियां जो आ रही है, उभर रही है, तालीम की तरफ गामजन है, एक कैसा, अक्सर लोग कहते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती है, ख़वातीन के ऊपर उनकी सोच को महदूद किया जाता है, आप खुलकर आगे आई हैं अदब के माध्यम से, कैसा महसूस करते हैं? क्या ऐसा पैगाम है? आज के दौर में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लड़कियों ने कहीं किसी ताल्लुक में पीछे रहना चाहिए, क्योंकि तालीम के मामले में भी आजकल लड़कियां उतनी ही आगे बढ़ रही है, और हमारे हिसाब से तो उर्दू अदब में भी लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक औरत जिस तरह से मुशाहिदा करके कलम को चला सकती है, वो एक बहुत बेहतरीन अंदाज में अपने अतराफ के वाक़यात को कलमबंद कर सकती है। एक आखिरी सवाल कि अक्सर कहा जाता है कि पर्दा गोशा ये ख़वातीन की राह में तरक्की के लिए रुकावट, अक्सर ये अखबारात में भी आता है, सोशल मीडिया में भी आता है, आप पर्दे के साथ मामले को चल रहे लेके आप, तो आपको लगता है कि वाकई बुर्का, पर्दा, ये हिजाब, ये कहने की रुकावट का आता है, ऐसा कहा जाता है? बिल्कुल भी नहीं। पर्दा या हिजाब के बिल्कुल किसी तरह से तालीम की राह में या अदब की राह में किसी भी तरह आगे बढ़ने में कोई रुकावट का काम नहीं करता है, बल्कि ये, और हम अपनी मुस्लिम्स की यानी एक लड़कियां जो होती हैं, ये किस तरह से इसमें रहकर और आगे बढ़ सकती है, ये उनके लिए एक मोटिवेशन की तरह है। ये बाजी मैंने देखा हूँ, आप अखबारात के ज़रिए आप समाजी सोशल वर्कर है, महिलाओं के लिए बहुत काम करती हैं, और एक अदब के दुनिया में आकर ऐसी ख़वातीन को, बेटियों को, उनको मोटिवाइज़ करना, उनको बढ़ाना, उसमें हौसला अफजाई करना, कहाँ से सीखा आपने? देखिए, सीखने की तो ये नहीं है, क्योंकि हमारा औरंगाबाद शहर ये एक तहजीबी और सकाफती शहर है, और इस शहर की रिवायत रही है कि यहाँ शोरा उद्बा ने जन्म लिया है, जैसे कि बशर नवाज साहब है और सिराज औरंगाबादी है, और आज के दौर में देखें तो नूरुल हसनैन साहब भी है, तो इंटरनेशनल राइटर इनको कहा जाता है, नॉवेलिस्ट कहा जाता है। तो हमने कुछ नया नहीं किया, बल्कि इस जो ये परंपरा चल रही है, जो ये सकाफत चल रही है, तो इस विरसे को हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। भाजी आप सियासत से जुड़े हुए हैं, और अभी मुझे हाल ही में पता चला कि इमाम के आप महिला की सदर बना गए, आपको मुबारकबाद। कि आपको लगता है कि वो अदब के दायरे में भी महिला आगे जा सकती है, ऊंचाई को छू सकती है? और अदब के दायरे में ही रहकर ऊंचाई को छुआ जा सकता है। तो अगर कहा जाता है कि बाअदब बानसीब और बेअदब बदनसीब, तो अगर हम अदब के दायरे में रहकर ऐसी चीज़ें करेंगे तो हमारी हिम्मत अफजाई भी होगी। और आज समाज में कई लोग ऐसे हैं कि जो ये पर्दादार ख़वातीन हैं, जो लिखने का काम कर रही है, तो इनको आगे लाने के लिए बाकायदा कई अंजुमनें शहर में है, कई प्लेटफॉर्म मुहैया है, तो हम अलग अलग प्लेटफॉर्म से जाकर अपने ख़यालात का इजहार कर सकते हैं। और जहाँ हमें ऐसा लग रहा है कि हम ख़यालात का इजहार खुलकर नहीं कर सकते, तो हम लिखने के ज़रिए, अखबारों में और अपनी किताबों के ज़रिए अपने ख़यालात लोगों तक पहुँचा सकते हैं। जहाँ तक सबा तहसीन की बात है, अपने दायरे का फ़िरौन, इन्होंने जो किताब लिखी है, तो ये किताब अपने टाइटल में ही बहुत कुछ कह रही है, क्योंकि ये दौर ऐसा है, आप देख रहे हैं कि फ़लस्तीन पे इसराइल किस तरह से हमले कर रहा है, किस तरह से ख़वातीन और मासूम बच्चों की जानी जा रही है। तो ऐसे दौर में कहा जाता है ना, जहाँ हर दौर में फ़िरौन आएगा तो हर दौर में फिर मूसा भी कहीं ना कहीं है ना। और मूसा के पास, जैसे सबा तहसीन ने भी कहा कि मूसा के पास आसा भी है ना। तो ये चीज़ें हैं।
और सबा तहसीन की हद तक मैं ये कहना चाहूँगी कि सबा तहसीन ने जो अपने अफसाने लिखे हैं तो ये कोई रिवायती अफसाने नहीं हैं। इन्होंने बहुत ही बारीक बीनी से मुशाहिदा किया है अपने अतराफ़ के माहौल का, समाज में चल रहे मसाइल का, और फिर अपनी कलम के ज़रिए इनको अल्फाज में ढाला। बाकी आखिरी सवाल कि हमारी ऐसी कई बेटियाँ और कई बहनें जो अदब की दुनिया में आना चाहती हैं, कुछ लिखना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं अफसाने निगार, तो उनको आप प्लेटफॉर्म देने के लिए कोई ऐसा पैगाम नहीं है कि भाई कोई आपका ऑफिस हो या आपसे रब्ता ख़ैर कर सके या आपको हौसला बढ़ा सके, तो ऐसा कोई पैगाम आपकी तरफ से? जैसे कि आप देख रहे हैं कि कीर्ति मैडम साहिबा भी हमारे साथ खड़ी हैं और हम मिलकर यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू से मिलकर और नौखंडा कॉलेज के शोबे उर्दू से मिलकर गुज़िश्ता सालों से हम ऐसे प्रोग्राम रख रहे हैं, ऐसे नशिस्तें रख रहे हैं कि जिसमें लड़कियां हैं और लड़के भी हैं जो शायरी सीखना चाह रहे हैं, जो शायरी करते हैं, और हम ऐसे उस्ताद शोरा जो हमारे शहर में मौजूद है उनको बुलाकर बाकायदा नशिस्तें रखते हैं और अंजुमन अहले कलम के ज़रिए हम प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं कि ऐसे बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिले, ऐसे जो लिखने वाले हैं, अफसाना निगार हैं, इनको आगे बढ़ने का मौका मिले। थैंक यू। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।